Mitresh, can you hear me? Hello, am I audible? Yes, you are. Yes, you are Do I audible. have I can't hear Mitresh properly. just a minute. Audible now? Yes, audible now. So can we start? Yes, yes, we can. Okay. So good morning, everyone, and it's an absolute honor to welcome you all to another exciting session of the Change Makers of India 2.2, where we bring you the real stories, real struggles, and real world success to inspire the next generation of leaders and entrepreneurs. Today, we have with us a true change maker, a visionary entrepreneur who have turned a simple idea into a thriving business, Mr. Mitresh Sharma, co-founder of First Word Organics and a featured entrepreneur on Shark Tank India Season 3. From starting a mission to bring organic wellness to the masses, building a brand that impressed the sharks, his journey is proof that passion, perseverance, and the right mindset can turn dreams into reality. In today's session, we will dive into his incredible journey, uncover startup secrets, and explore internship and career opportunities that can help you take the first step towards success. So get ready to be inspired, take notes, and most importantly, ask questions because opportunities like this don't come every day. So without further ado, let's give a huge round of applause to Mr. Mitresh Sharma. Welcome, Mitresh. Thank you. So can I request everyone to switch on their cameras? I we can ask guys, you can turn on your cameras and you can interact. But experiences in the past do not allow us Okay, to ask them to do so. They create okay, lot of chaos. okay. ठीक है, then The let's start. session I will be mean, no troubled. worries. Yeah. Yeah. So yeah. So Mitresh, you started First Word Organics with your mother, which is a beautiful blend of family and business. Was entrepreneurship always the plan, or there was a moment that made you take this leap? So for me, it was more of a. I mean, I did not have any choice. I started when there was no choice given to me because the company I was working in after my MBA shut down. Okay. So in a way, you can say that I lost my job. I was back to zero. So I need to do something. So my Mhm. first startup was Viral Wave, which was a digital marketing agency जो मैंने दिल्ली में शुरू किया था अपने कलीग के साथ. एंड Okay. ये 2009-11 के आसपास की बात है. तब डिजिटल मार्केटिंग वाज वेरी न्यू. अभी आप इतना Mhm. देख रहे हो, आई मीन सोशल मीडिया, और ये बहुत नया था उस वक्त. और इट वाज ए कोरियन कंपनी, सो ऑब्वियसली लर्न सो मेनी थिंग्स, क्योंकि वो लोग 2-2.5 साल यहाँ से मार्केट ट्रेंड्स में आगे होते हैं. और इंडिया में वो Right. ट्रेंड आया, बाद में आया. तो वो लर्निंग थी डिजिटल की. तो ऑलवेज आई वांटेड अ फिजिकल प्रोडक्ट जिसको हम लोग सेल कर पाए. तो Mhm. ये आइडिया था फर्स्ट बर्ड का. और वायरल वेब से ये हो नहीं पाया क्योंकि मेरे साथ उसमें और भी कलीग्स थे, पार्टनर्स थे. तो फाइनली मुझे वायरल वेब भी छोड़ना पड़ा, क्विट किया मैंने 2 साल के बाद. और कुछ मिस्टेक्स भी किए थे वहाँ पे, बीइंग माय फर्स्ट बिजनेस. तो हमारे कुछ फिक्स कॉस्ट काफ़ी हाई थे, रेंटल हो गए, टीम साइज बहुत बड़ी हो गई थी. तो फाइनली आई डिसाइडेड कि अब मूव ऑन करना चाहिए. एंड माय सेकंड स्टार्टअप केम अप विद फर्स्ट बर्ड. जो भी मैंने वहाँ मिस्टेक किए, वहाँ से सीखे, वो यहाँ पे अप्लाई किए. तो फर्स्ट बर्ड बहुत लंबे समय तक बूटस्ट्रैप था. बूटस्ट्रैप बेसिकली आप कह सकते हो कि विदाउट एक्सटर्नल फंडिंग घर से शुरू किया, छोटे से फंड के साथ, और बहुत ही धीरे धीरे इसको स्केल किया. और जब तक मेरा रेवेन्यू 1 करोड़ तक नहीं गया, मुझे लगता नहीं कि हम लोगों ने कोई भी डेट लोन या कोई फंड भी लिया है. मेरा पहला फंड सीधा शार्क टैंक से आया है, उसके पहले तो कभी फंड लिया भी नहीं है. That's nice. Yeah. But I'm sure आप regret तो नहीं कर रहे होगे अपना decision. नहीं, रिग्रेट नहीं कर रहा एक्चुअली मैं. पॉजिटिव उस वक्त भी था, ऑल्दो अप्स एंड डाउन्स आते हैं ये बिजनेस में जब भी आप करते हो. Right, और right. मैंने जब शुरू किया था तो क्या होता है कि जब आप जॉब में होते हो, यू आर वेरी यूज टू सम फिक्स सैलरी हर महीने. तो Right. जब बिजनेस शुरू किया, वो मेरे लिए एक थोड़ा पेन पॉइंट था उस समय, क्योंकि वो पार्ट ऐसा था कि जहाँ पे मुझे अपने आप को समझाना पड़ता था कि नहीं, चलो ठीक है, वी विल मैनेज. और इनिशियल 6 मंथ्स टफ होते ही हैं. 6 महीने का शुरू Correct. के 1 साल तो बहुत टफ होता है, क्योंकि आपके रेवेन्यूज नहीं आते.
और हमारे हम्म, केस में भी ऐसा ही था। शुरू के 6 महीने आई डोंट थिंक हमने 50 से 100 से ज़्यादा डब्बे बेचे भी होंगे ग्रीन टीज के। उस वक्त मेरे पास 3 प्रोडक्ट ही थे, एक स्लिम टी था, तुलसी ग्रीन टी था, और एक पेपरमेंट टी था। और लास्ट के 6 महीने में हमने 23 लाख का रेवेन्यू किया था पहले साल। इतना फर्क था, शुरू के 6 महीने कुछ नहीं और लास्ट के 6 महीने 23 लाख। ऑल्दो अमेजिंग। ऑल्दो वो 23 लाख सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन वहाँ भी चैलेंजेस थे क्योंकि हमारे पास कैपिटल नहीं था कि हम लोग इन्वेंट्री बिल्ड कर पाए और उस साइकिल को, क्योंकि हमें भी बहुत वेंडर्स से जब हम लेते हैं हमें उनको पेमेंट अपफ्रंट देनी होती है, हमें पेमेंट्स लेट आती थी, तो उसको मैनेज करना बहुत टफ था। तो वो चैलेंजेस हमेशा से रहे हैं, वो धीरे धीरे मैनेज हुआ है। और लकीली कोविड के बाद थोड़ा पैनिक परचेज हुआ, रेवेन्यू काफ़ी बढ़ा, लेकिन कोविड की वजह से मुझे काफ़ी लॉसेस भी हुए थे। मतलब मुझे अपना ऑफिस फिर से बंद करके दोबारा घर में घर से शुरू करना पड़ा, क्योंकि एक शिपमेंट था साउथ अफ्रीका का, वो हम लोग शिप ही नहीं कर पाए। वहाँ पे 20 लाख का लॉस लगा था हमें। तो उसके बाद मैंने दोबारा से बूटस्ट्रैप किया, फिर से ग्रो किया, और फिर शार्क टाइम पे गए। सीजन 2 में नहीं हुआ, सीजन 3 में दोबारा गए, सिलेक्शन हो गया, डील भी मिल गई, और अब ब्रांड ग्रो कर रहा है। It's been a roller coaster ride, I must say. हाँ, वो अप But एंड such डाउन है, a strong दिन में journey. 10 बार ऐसे मूवमेंट्स आते हैं, आप ऊपर जाते हो नीचे आते हो, अब आदत पड़ गई है। Right, 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 right. That's nice कि आपने वहां से यहाँ तक इस जर्नी को इतनी अच्छी ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है एंड पहुंचाया है. So that's really inspiring, Mitresh. So, facing the sharks, on national television, आप Shark Tank season 3 में and 2 में भी feature हुए हो. It, must be a nerve-shaking experience. So, what was यस। going through in your mind? Was you even sure कि funding मिलेगी, नहीं मिलेगी? And what was the lessons and challenges जो आपने second season में face किया, then उसको overcome कैसे किया third season में that you got तो the सीजन funding? 2 में ऐसा था कि वो पीरियड था मेरा काफी डाउन वाला फेज था, क्योंकि कोविड के बाद कुछ सर्टेन लॉसेस लगे थे। मेरे रेवेन्यू कम हो गए थे, हम लोग फिर से 70-80 लाख पे आ गए थे। तो जब सीजन 2 में मैंने अप्लाई किया, मेरा रेवेन्यू भी कम था, 70-80 लाख था पहला। सेकंड, ब्रांडिंग में मेजर प्रॉब्लम था हमारे। हमारे हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स में अलग अलग पैकेजिंग डिजाइन थे, यूनिफॉर्मिटी नहीं था। और थर्ड, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव कैटेगरी है, जो मुझे फीडबैक बाद में उनकी टीम से मिला, क्योंकि जब आप टीवी पे आते हो उसके पहले 3-4 राउंड्स होते हैं। तो सीजन 2 में हम लोगों ने सारे राउंड्स क्वालिफाई किए और शूट से पहले बाहर हुए थे, और कोई तरीका नहीं था कि हम उनसे पूछ पाए कि हम लोग बाहर क्यों हुए। तो फाइनली मैंने लिंक्डइन में अप्रोच किया एंड आई आस्क्ड हिम, मुझे फीडबैक चाहिए, एक ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। ब्रांड में प्रॉब्लम है, मेरे अंदर प्रॉब्लम है। तो फीडबैक ये आया था कि सब कुछ अच्छा था, मे बी ये कैटेगरी ही कॉम्पिटेटिव है। और उस साल कुछ ऐसे ब्रांड्स आए थे मेरे कैटेगरी में जो सही में अच्छा रेवेन्यू कर रहे थे, उनके 5 से 6 करोड़ के रेवेन्यूज थे। तो वो तो क्लियर था कि रेवेन्यू में ही प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट ईयर थोड़ा रेवेन्यू इंप्रूव किया, डबल किया उसको, 1.6 करोड़ पे हम लोग दोबारा गए जब गए। आई थिंक नवंबर तक 1.5 करोड़ था। Okay. और ब्रांडिंग चेंज की फर्स्ट बर्ड की, और सबसे की चेंजेस किया कि जो मेरे 2 प्रोडक्ट्स थे जो हम लोग ब्रांड करते हैं कि घर से आए, मतलब मदर्स के किचन से आए, तो वहाँ पे मैंने अपनी मदर का फेस यूज़ किया एज अ ब्रांडिंग में, होममेड प्रोडक्ट्स में। और मम्मी को साथ लेके गया था मैं पिच में। तो हम लोग इस चीज़ के लिए बहुत ही श्योर थे कि हमें वापस तो ऐसे नहीं आना है, फंड्स लेके आना है, क्योंकि ये ईयर एंड प्रोसेस होता है पूरा, 10 से 12 महीने का। फॉर्म्स निकलते हैं अप्रैल में, आपकी शूटिंग होती है नवंबर दिसंबर में, टीवी पे आप अगले अगले फिर मार्च में आते हो, जन से Hmm. मार्च। तो 10-11 महीने का प्रोसेस है, और हम लोग उसको जाने मतलब नहीं देना चाहते थे। तो लकीली, आई मीन, मेरे एपिसोड में जो भी हुआ अच्छा हुआ। बहुत ज़्यादा ग्रिल भी नहीं किया गया, बहुत ही डाउन टू अर्थ थे सारे शार्क्स, और बहुत ही अच्छे से क्लोजर भी हुआ उसका। रितेश से डील भी मिला, हम लोग सीजन 4 में फिर से गए हैं एज अ सक्सेस स्टोरी। Okay. और आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मेजर चेंजेस अगेन, क्योंकि सीजन 4 में सबको मौका नहीं मिला है। हर हफ्ते एक सक्सेस स्टोरी शोकेस हो रहा है, जिसमें हमारा हो चुका है सेकेंड वीक या थर्ड वीक में। टोटल 10 सक्सेस स्टोरीज आएंगे। तो आई थिंक शार्क टैंक की टीम ने भी बहुत सपोर्ट किया है। That's really nice, Mitresh. अच्छा मितेश, ऐसा बोला जाता है कि more than your business in Shark Tank India, what attracts the sharks is your emotional story or the journey. So क्या ऐसा है कि business आपका कितना भी अच्छा चल रहा हो, बिजनेस, लेकिन देखिए, अगर बिजनेस एक आपकी वो फैक्टर है। story नहीं है? अगर आपका बिजनेस अच्छा है तो आई मीन उससे ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मोर देन अ बिजनेस, आपकी बिजनेस की भी एक स्टोरी होनी चाहिए। और ये सिर्फ शार्क टैंक के लिए नहीं है, ये मार्केटिंग के लिए भी है, कंज्यूमर्स के Right. लिए भी है, जो हम आपकी अपने तो है ही. कस्टमर्स को दिखा सकें। अगर ब्रांड की स्टोरी नहीं है तो आई थिंक स्टोरी टेलिंग नहीं होने से बहुत चीज़ें खराब हो जाती हैं।
तो अगर स्टोरी नहीं है तो स्टोरी बनानी पड़ती है, अगर स्टोरी है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब वो तो चाहिए चाहिए आपको। और एंड ऑफ द डे इट्स अ रियलिटी शो, मतलब बिजनेस शो अच्छी Right. बात है लेकिन है तो रियलिटी शो। Right, right. That is very honest and intense advice, I must say. So moving on with Resh, a lot of students have business ideas, but they don't know, they have no idea how to start and from where to start. So if you were in their shoes today, अगर आप उनके जगह पे होते आज के टाइम पे, तो आप अपना पहला स्टेप क्या लेते? देखिए मैंने भी तब शुरू किया था जब आई थिंक मेरा पहला जॉब था, उसके बाद मैंने कभी जॉब किया भी नहीं है। और अभी मैं बहुत सारे कॉलेजेस जाता हूँ, जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर में। अभी मैं मास्टर्स यूनियन गया था, तो वहाँ पे कैंपस से ही दो तीन बच्चे अपने अपने स्टार्टअप्स को बिल्ड कर रहे हैं। ईट एटलस नाम है का, वो लोग फूड कैटेगरी में है। और उनको हम लोगों ने रेफर भी किया था शार्क टैंक में, वो लोग गए भी थे फिर वहाँ पे। तो अभी क्या आप देखोगे, अभी कॉलेजेस से बहुत सारे स्टार्टअप्स बनने शुरू हो गए हैं। पहले आईटी टेक स्टार्टअप्स हो रहे थे, लेकिन अभी आप देखोगे तो D2C स्पेस में भी, जो कंज्यूमर ब्रांड्स में भी है, वो कॉलेजेस से बिल्ड हो रहे हैं। उसका रीजन ये है, जब आप कॉलेज में होते हो तो आपके पास कुछ रिसोर्सेज बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। एक तो इंटरनेट, सेकंड आपके फ्रेंड्स होते हैं, अगर आप लाइक माइंडेड हो आप एक छोटी टीम बना सकते हो। अगर गोल्स अलाइंड है आप उस गोल्स के लिए काम कर सकते हो। थर्ड, फंडिंग फंडिंग बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट नहीं है। आइल से किसी को शुरू करना है वो 50,000 से 1 लाख के फंड्स में भी शुरू कर सकता है। आपको बर्न नहीं करना है, आपको शुरू करना है, आपको टेस्ट करना है कि वो चलता है या नहीं चलता है। उसके बाद आप बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, स्टार्टअप इंडिया में भी है, हर स्टेट लेवल पे अपनी स्कीम्स हैं। बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर है, आप उनको भी अप्रोच कर सकते हो फिर फंड्स के लिए। पहले आप करके देख लो कि वो वायबल है या नहीं, तो वो मार्केट फिट है या नहीं, रेवेन्यू आएगा या नहीं आएगा। तो पहले एक छोटा सा पायलट करना, आई डोंट थिंक वो आज के टाइम में टफ है इतना। और जो मेट्रो सिटीज में उनके लिए तो बहुत ईजी होना चाहिए। That's really, I must say that's a very super practical advice. No more waiting. उनको start कर देना चाहिए जहाँ पे भी अभी they बहुत are लोग क्या होता है वो starting. सोचते हैं, मतलब, और ये सिर्फ Right. मतलब स्टूडेंट्स के साथ नहीं है, जो जिनके पास कैपिटल है वो सोचते हैं कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मुझे अप्रोच करते हैं कि हमें भी ब्रांड बनाना है। 5 महीने 6 महीने बात करते हैं, बहुत R&D करते हैं, किस कैटेगरी में जाए, क्या करें, क्लोथिंग में जाए, इसमें जाए, और फिर करते हैं कुछ नहीं है। तो पॉइंट ये है कि अगर आपने Right. शुरू कर दिया है तो आप कर दीजिए। पहला स्टेप लेना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। भले आपको कंपनी फॉर्म करनी है नहीं करनी है, आप बेच के देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहला स्टेप ले लोगे तो आई थिंक बाकी चीजें खुद हो जाती हैं। Totally क्योंकि agree, बिजनेस एक Rishit. लंबा प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आप 1 साल में बंद कर रहे हो। तो आई मीन वो तो चलता रहेगा, वो आप सीखते रहोगे कुछ ना कुछ। Right, right. Very true advice. So yeah, so Mitresh, building a business is not easy job, And so what are the toughest challenges in your journey? आपने अपनी journey में personally क्या challenges feel किए हैं in your business, especially in organic products का मैंने जो अपने आपका केस में business है? आई मीन प्रोडक्ट ओरिएंटेड इतने नहीं किए हैं जितने मैंने पर्सनल लेवल पे किए हैं। और पहला पहला चैलेंज चैलेंज ही था फेलियर का। तो वो डर Hmm. मुझे था नहीं कभी, क्योंकि जब वायरल वेब भी मैंने छोड़ा, उसके पहले वो जॉब गई, तो ऑलरेडी मैं फेल था पहले, तो मुझे वो डर नहीं था। मुझे लगा था इससे बुरा क्या होगा, मतलब मैं मर तो नहीं जाऊंगा। तो वो डर तो मुझे था ही नहीं। सेकंड, पैसे थे भी नहीं। तो मुझे लगता है दो ही इंसान कुछ कर पाएगा, जिसके पास पैसे हो या तो बहुत या तो नहीं हो। बीच वाला तो कर भी Hmm. नहीं पाता है, क्योंकि वही Hmm. रिस्क लेता है, क्योंकि फिर उसमें वो पोटेंशियल आ जाता है रिस्क रिस्क टेकिंग का। Hmm. थर्ड, फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। भले आपके घर में कोई एक आदमी हो जो आपको सपोर्ट करे तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो मेरे केस में मुझे वो सपोर्ट मिला है, चाहे वो फादर से हो, मदर से हो, फ्रेंड से हो। वो सपोर्ट मिला है, कभी किसी ने ये नहीं बोला कि बंद कर दो या फिर छोड़ दो। जब मेरा बिजनेस डाउन भी था तो सबने सपोर्ट किया है उस चीज़ का। और मेजर चैलेंज आई थिंक मेरे केस में थोड़ा कैपिटल का ही था। Hmm. और कोई इतना चैलेंज था नहीं, वो भी हम लोगों ने धीरे धीरे उसको रिकवर किया है। और क्विट करने का कभी 1 2 बार हुआ है मन में, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन फिर मैंने घर में टाइम दिया। एक बार मुझे घर वालों ने बोला भी था कि अब जॉब देख लो फाइनली, लेकिन मैंने उनसे बोला नहीं, मुझे 3 महीने और दे दो। उस 3 महीने में भी कुछ नहीं हुआ, फिर मैंने बोला 6 महीने और दे दो। उस 6 महीने में सब कुछ हो गया। तो आई थिंक टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंट हो, चीज़ें चेंज हो सकती हैं। मतलब मैंने यही देखा, मैंने अपनी जर्नी में ये देखा है कि ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिए हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने 100% दिया है। मुझे लगता है मैंने 30% ही दिया है अभी तक, या 30 40 दिया होगा। और बस यही था कि मैं करता करता रहा, तो मुझे उसका रिवॉर्ड मिल गया। अगर बंद होना होता तो शायद फर्स्ट बार अब तक 3 से 4 बार बंद हो चुका होता। Very true, very true. आप दो केस में रिस्क लेते हो, इधर यू हैव एवरीथिंग, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, यू हैव बैकअप, यू हैव सपोर्ट, इधर यू हैव नथिंग, तो आप क्या ही नथिंग, लूज करोगे? राइट। तो आप फिर वेरी उसी रिसोर्स से बिल्ड करते हो। आप जब आपके पास पैसे नहीं होते
तो आप सोचते हो कि जो आपके पास मिनिमम रिसोर्स अवेलेबल है, आप उससे सर्वाइव करना चाहते हो, और आप सोचते हो कि फिर आप कुछ करो, तो भी आप हाथ पैर मार सकते हो। तो मेरे केस में वही था। ऐसा नहीं था कि मैं महीने के 10 लाख स्पेंड करूँ मार्केटिंग में, जो बड़े स्टार्टअप्स कर रहे थे, या महीने के 2 लाख भी करूँ। तो मैंने बहुत ही प्यार से बिल्ड किया है। तो अभी अभी केस अलग है। अगर अभी मुझे करना हो तो आई थिंक ये सेम चीज़ मैं 1 साल 1.5 साल में एक नए ब्रांड के साथ कर सकता हूँ, गिवन दैट मुझे वो कैपिटल मिल जाए। राइट। Capital acquire करना is always a tough challenge for the businesses. So especially students हैं या फिर जो already running entrepreneurs हैं, उनको आप क्या suggest मेरे करोगे ख्याल में अभी जो ये चैलेंज था, starting? ये चैलेंज हम्म। था, अभी चैलेंज नहीं है। 2-3 रीजंस हैं इसके। अगर आप देखोगे तो अभी अभी जो नया बजट भी आया है उसमें हम्म। स्टार्टअप इंडिया के अंदर बहुत अच्छे फंड्स अलोकेट हुए हैं, और हम्म। बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर होते हैं कॉलेजेस में जहाँ पे वो फंड्स दिए जाते हैं। जैसे हम्म। देहरादून में भी, अभी यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम में भी है। हाँ। बहुत सारे ऐसे nice. कॉलेजेस है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, हर जगह इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं। राइट। तो एक अच्छा अप्रोच है कि आप इनको अप्रोच करो अपने आइडियाज़ के साथ, और अगर आप लक है, सब कुछ है, तो आपको ग्रांट भी मिल जाते हैं। बहुत सारे ग्रांट अवेलेबल होते हैं 8 लाख 10 लाख के, जो आपको वापस करने नहीं होते। कुछ इक्विटी Okay. बेस्ड फंडिंग होती है इनक्यूबेशन सेंटर से, वो भी आप ले सकते हो। लेकिन ये सब करने से पहले, अगर आपका आइडिया बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है, तभी आपको आइडिएशन स्टेज पे पैसा मिलता है। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में हो जैसे हम लोग हैं, तो आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। आपको थोड़ा Right. दिखाना पड़ेगा कि आपने क्या बनाया है, एटलीस्ट वो पैकेट बना हुआ हो, वो प्रोडक्ट फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो। अगर सेल्स फिगर है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप एक डाटा लेके जा रहे हो इन्वेस्टर के पास। So for college students, incubation center is a very हाँ good, हाँ, आई opportunity. थिंक Like if they have बहुत good जगह idea. बहुत जगह प्रो एक्टिवली हो रहा है। आप मास्टर्स यूनियन में जाओ, वो तो वहाँ पे तो बच्चे स्टार्टअप ही कर रहे हैं, वो तो एमबीए में Hmm. पढ़ते भी नहीं है। Right. आप Right. देहरादून के कितने सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, हर जगह बहुत ज़्यादा एक्टिवली गवर्नमेंट स्टार्टअप उत्तराखंड उनको एक्टिवली उनसे वर्कशॉप कराता है। कितने अच्छे अच्छे Hmm. स्टार्टअप कॉलेज से आए हैं। स्पंदन में आप देखोगे सीजन 1 में रजत था, स्पंदन। तो रजत कॉलेज से ही निकला हुआ है वहाँ पे, बीटेक, वो ग्राफिक Right. में था। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जो निकल के आए हैं। Very, very practical and very true advice. So guys, you have your incubation center in the colleges जहाँ पे आप अपने ideas लेके funding के लिए तो definitely जा सकते हो. So, Mitesh, starting up is one thing. आपने business चलो शुरू तो कर दिया, but scaling is another beast. That is a different level of challenge. So, what are the key strategies, जिससे आपको first word organics को grow करने में help करी है? तो Which हमारे are, केस में generic in nature हम for लोग बहुत ज़्यादा everyone. श्योर थे कि हमें करना क्या है। जब मैंने शुरू भी किया था, तो अब हम लोग ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स पे थे। तो मैं बहुत Hmm. ज़्यादा श्योर था कि मुझे ऑर्गेनिक इंडिया से कॉम्पीट नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत बड़ा ब्रांड है, वो बहुत ही सस्ते में देता है। अगर मैं उससे कॉम्पीट करूंगा तो मैं 2 दिन में बाहर हूँ ऑनलाइन, और मेरे पास ऑनलाइन चैनल ही था और कुछ था भी नहीं उस वक्त, मैं अमेजोन पे ही बेचता था। तो वहाँ पे हम लोगों ने अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रखी कि हम प्रीमियम अफोर्डेबल में जाएंगे, हम मास सेगमेंट को कैटर ही नहीं करेंगे। उस Okay. वक्त हम लोग अपना अपना हाफ के जी हनी 450 500 में बेचते थे अमेजोन पे, और हम लोग टॉप 10 टॉप 15 में आते थे। ओनली रीजन वाज क्वालिटी। तो हम लोगों ने शुरू से क्वालिटी में खेला है, ना कि हम प्राइस में लड़ाई कर रहे थे किसी और से। तो ये Hmm. स्ट्रैटेजी को हम लोगों ने फॉलो किया एक टाइम तक, जब हमें वैलिडेशन मिल गया, हमारे पास अच्छे खासे कस्टमर्स हो गए, हमने प्रोडक्ट लाइंस को बढ़ाए। अभी जैसे अब हम लोग क्विक कॉमर्स में ग्रोसरी में भी आएंगे, जो अब तक नहीं थे। अभी तक हमारे पास 10 से 15 SKU थे, जो अब 50 से 60 हो जाएंगे। तो ये Okay. प्योरली स्केलिंग के लिए है, क्योंकि अब हम लोग स्टोर्स में भी आ रहे हैं खुद के, हमें एक्सपोर्ट में भी एग्रेसिवली करना है। तो Hmm. हमारा जो स्केलिंग के लिए प्लान है वो यही है कि हमें अब ग्रोसरी में आना है, और कम्प्लीटली इनटू द लाइंस ऑफ ऑर्गेनिक इंडिया। जो पहले कॉम्पीट नहीं कर रहे थे, अब कॉम्पीट करेंगे, क्योंकि पहले हमारे पास कैपेसिटी नहीं था, अभी है। That's very golden opportunity for you as well, and it's a very यस, nice strategy कि जहाँ पे आपका competition है, you start from there. आपका राइट। प्रीमियम एक बार वैलिडेशन मिल जाए, आपके पास सेट ऑफ कंज्यूमर्स है, जो राइट आपके लिए अच्छा बोलते हैं, आपको आपके प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं, तो हमारे लिए भी इजी होता है फिर। right. So, Mitresh, there are students who are looking to gain industry experiences. They want to work with startup. They want to, understand how startup works. And if they have any idea, how can, they pitch to the founders and उनको idea basically validation चाहिए होता है. So does हम्म। your company, does First Word Organics offers any such opportunity, तो maybe वी internship? डू इंटर्नशिप। अभी जैसे हम लोगों ने आईआईटी से भी काफी बच्चे लिए थे, मास्टर्स यूनियन से भी। ITC. हाँ, तो इंटर्नशिप इज समथिंग वी लुक फॉरवर्ड टू। सेकेंड, जो स्टार्टअप वाला पार्ट है, तो आई पर्सनली हैव गिवन मेंटरशिप टू मेनी स्टूडेंट्स एंड स्टार्टअप्स। जैसे मैं आईआईटी पटना के
जीरो लैब से भी एसोसिएटेड हूँ फॉर मेंटरशिप, मास्टर्स यूनियन में भी हूँ। तो जहाँ पे भी हमें लगता है कि कोई अच्छा स्टार्टअप आ रहा है या किसी को मन है इन सेम कैटेगरी और जहाँ पे मैं यूजफुल हो सकता हूँ, वहाँ पे आई ऑलवेज कनेक्ट विद देम। हम्म, एंड व्हेन आई से मेंटरशिप, इट्स नॉट अबाउट बुकिश थिंग। हम लोग एक्चुअली में उनको हेल्प करते हैं जहाँ पे जो उनको कनेक्शंस चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर उनको पैकेजिंग में दिक्कत आ रही है तो आई कनेक्ट देम विद द वेंडर्स ऑफ पैकेजिंग, जो कि उनका काम उस प्राइस रेंज में कर सकें। इफ दे नीड सम सप्लायर्स, आई कनेक्ट देम टू द सप्लायर्स। उनको लिस्टिंग करनी है अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, उनको प्रॉब्लम आ रही है, आई कनेक्ट विद देम। तो हम लोग यहाँ पे रियलिस्टिक हेल्प करते हैं। हम लोग वैसे बुकिश नॉलेज नहीं देते कि फिर बस कहने का मेंटरशिप हो। तो दिस इज समथिंग आई लुक फॉरवर्ड टू, एंड आई कैन and I will be happy if someone is starting up and I can be, useful to them. wonderful opportunity, I must say, guys. So you can reach out to him. He's always there to help, I'm sure. So yeah. So moving on, Mitresh, how important was mentorship? Starting a business is all sort of a different game. So mentorship इसमें कैसे काम करती है? Be it your journey or be it students जो आज की डेट में अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को एक नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं, तो मेंटोरशिप के लिए हाउ कैन दे कहाँ जाए वो आज की डेट में? देखिए, मेंटोरशिप इज समथिंग कि जो मैंने भी अपनी जर्नी में मिस किया है इनिशियल डेज में। अगर अगर शायद होता तो वो इतना टाइम भी नहीं लगता, राइट? हम्म, क्योंकि वो सही कैटेगरी में आना, सही स्ट्रैटेजीज को लेना। लेकिन अभी मुझे बहुत क्लियर है कि मेरे डूज क्या है, डोंट्स क्या है। तो अभी मैं किसी को जब गाइड करता हूँ तो क्लियर कट पिक्चर होता है कि हमारे गोल्स क्या है, हमें कितने रेवेन्यू पे जाना है और हमें क्या करना है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी अगर किसी को चाहिए तो दो तीन तरीके होते हैं इसके भी अप्रोच के। पहला तो ये हम्म। कि आप खुद से फाउंडर्स को अप्रोच करो वाया लिंक्डइन। आपकी जो भी सिमिलर कैटेगरी में, इफ दे आर इंटरेस्टेड, दे विल गेट इन डू टच दे विद यू। रिस्पॉन्ड अगर बच्चे ऐसे लिंक्डइन से रीच आउट भी करते हैं तो? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत सारी क्वेरीज है, डीएम इंस्टा पे भी आया, लिंक्डइन पे आया, मैंने बात किया है काफी लोगों से। आई थिंक 90% से तो किया ही है। सेकेंड वे इज, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, एग्रीगेटर्स हैं, जैसे यूनिकॉर्न भी है, और भी ऐसे ऐप्स हैं जहाँ पे आप वहाँ पे पेड फॉर्म में है। दे टेक सम मॉनिटरी वैल्यू टू इट, 500 या 1000 जो भी उनकी फीस है, फॉर हाफ एन आवर और 1 घंटे के लिए। आप वैसे भी अप्रोच कर सकते हो। थर्ड, अगेन दे आर मेनी इंक्यूबेशन सेंटर्स जहाँ पे ऑफिशियली मेंटर्स ऑन बोर्ड होते हैं और वो फ्री में मेंटरशिप भी देते हैं। हम्म, तो ये तीन चार अच्छे तरीके हैं। और फोर्थ इज ऑब्वियसली एनी कनेक्ट्स। अगर आप किसी भी कनेक्शन के थ्रू जा सकते हो रिक्वेस्ट करके। तो मुझे बहुत ही अननोन कॉल्स भी आए हैं जहाँ पे उन्होंने मुझसे नहीं, किसी और से हेल्प चाहिए थी, लेकिन मुझे रिक्वेस्ट किया अगर आप कनेक्ट कर दो। मैंने वो वैसे भी किए हैं। that's really nice. That's really nice of you. One more I would like to add. They have Whiteboard Foundation also, जहाँ पे they can connect and they हाँ, तो can व्हाइट help. बोर्ड में आई थिंक दे आर नंबर ऑफ फाउंडर्स कमिंग इन, और Yeah. दे कैन ऑलवेज कनेक्ट यू। Yeah, so they can connect us also for any queries, any doubts. We are also there to help them. So, Mitresh, if you could go back to your college days, जहाँ पे आज बच्चे खड़े हुए हैं, so how would you differently, prepare yourself for आई better थिंक this? व्हेन आई सी माय कॉलेज, आई फील आई वेस्टेड दोस 3 इयर्स कंप्लीटली। उसके बाद एमबीए में भी वेस्ट ही किया मैंने। अगर वो गोल मेरा पहले से अलाइन होता तो वो टाइम वेस्ट नहीं होता, क्योंकि मेरा ये विजन था ही नहीं। मतलब मुझे था बिजनेस करने का, लेकिन आई थिंक आई वॉज बिट ऑफ डिस्ट्रैक्टेड। और मुझे लगता है कि आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन और भी ज़्यादा है, क्योंकि Right. इतने सारे सोशल मीडिया टूल्स हैं, द नंबर ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कमिंग इन। तो मुझे लगता है कि इनके लिए तो करना और भी टफ है, क्योंकि जब हम लोगों ने किया तो इतना कुछ था भी नहीं, व्हाट्सएप भी नहीं था ठीक से उस समय। आज तो डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है लेकिन इनका क्रेज भी उतना ही ज्यादा है, हाँ, क्रेज, आई एग्री। आई मीन दे आर फाउंडर दे आर बनने मोर का, एग्रेसिव, एंटरप्रेन्योर बनने का। दे आर मोर एग्रेसिव एंड दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर टाइम। या मोस्टली जेनजी, आई मीन ये लोग चाहते हैं कि 1-2 साल में ये कुछ अच्छा करें और पैसा कमाए, क्योंकि विच इज़ वेरी गुड। तो राइट, राइट। आई विल से दैट डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर गोल्स है तो आप उसी पे लग जाओ। मतलब बाकी सब कुछ में कुछ फायदा नहीं है वो फिर। मतलब क्लियर होना चाहिए, आपको जॉब में जाना है, जॉब भी खराब नहीं है। आपके गोल्स अलाइन होने चाहिए, स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, जो भी जाना है आप उस पर फोकस, वही गोल क्लियर होना चाहिए। राइट, यू हैव मेंटर्स, यू हैव प्लेटफॉर्म, यू हैव एवरीथिंग, यू कैन स्टार्ट जहां से हो, जहां पे भी हो, फ्रॉम देयर ओनली यू कैन स्टार्ट। सो Yes. With स्टार्ट दिस whatever, I mean, टाइम। if they want to go into sports, if they go want to into music, जो भी हॉबी है, बिजनेस है, कुछ भी है, वो मतलब अलाइंड हो तो अच्छा है। शुरू से करना करना क्या है वो पता होना चाहिए। Right, right. Clarity of mind is very much important in this यस। case. Right. So, Mitesh, as we can see, organic and wellness space is booming आज के time पे. So, what makes, post-word organic stand out in such a competitive market?
तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने प्रोडक्ट्स में कुछ वैलिडेशंस देते हैं शुरू से। Mm-hmm. जैसे अभी लाकाडोंग इज माई बेस्ट सेलर टर्मरिक में, तो वो नॉर्मल मासी टर्मरिक नहीं है, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी है, जहाँ पे हम लोग क्लेम करते हैं कि उसमें कर्क्यूमिन कंटेंट 8 से भी हाई है, 8% से ऊपर होता है, और होता है वो। Okay. सिमिलरली हम लोग जब सैफरन सेल करते हैं तो भी क्लेम उसमें हाई क्रोसिन कंटेंट होता है। जिंजर पाउडर में भी Okay. क्लेम इट हैज अ हाई जिंजरॉल कंटेंट। तो हम लोग कुछ की वैलिडेशंस पे काम करते हैं, और ये ऐसे केमिकल्स हैं जो जिसका एक्चुअली बेनिफिट होता है। टर्मरिक की सारी हीलिंग ही करक्यूमिन से होती है। Hmm. और इंडिया में 3 चीजों में सबसे ज्यादा मिलावट है, घी, टर्मरिक एंड हनी। ये 3 चीजें Right. ऐसी हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा अडल्ट्रेशन है। तो हमारा प्रॉमिस है कि एक तो जीरो केमिकल है, जीरो कलरिंग है, कलर भी यूज नहीं होता, प्लस कर्क्यूमिन हाई परसेंटेज में होता है, विच इज ऑफ एक्सपोर्ट क्वालिटी। तो उसमें टेस्टिंग पैरामीटर्स काफी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जिसमें हमारी अच्छी खासी कॉस्टिंग्स भी आती हैं। तो Okay. और उसका रीजन भी है कि हमारे जो रिपीट परचेज है कस्टमर्स में, वो 50% से भी ज्यादा हो गए हैं अब। क्योंकि जो भी एक बार लेता है वो नेक्स्ट टाइम आके 2-3 पैक्स और लेता ही लेता है। Okay. Well, that's the power of हाँ, बट वन थिंग authenticity. इज कि अभी तक दिस प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव। आई मीन 250 grams ऑफ माई टर्मरिक कॉस्ट 300 रुपीज। आई थिंक मार्केट में क्योंकि आप 100 प्रीमियम कैप्सूल में में। ही अभी इसको राइट, टारगेट कर रहे हो, राइट? राइट, अभी सो हम लोग दैट मास इज में आए नहीं है। राइट। right, right, right. Okay, so that's really nice. That is the power of authenticity, I must say. So going good. So Mitresh, entrepreneurs, have to take tough calls all the time. You can, definitely relate to this. So what is your approach to, decision making when stakes are high, things are not working? आप कैसे decide करते हो उस time पे? आई थिंक देयर हैव बीन टाइम्स, आई मीन वो केस जब मुझे अपना ऑफिस ही क्लोज करना पड़ा था, वो सबसे ज़्यादा पेनफुल था मेरे लिए। पेनफुल इसलिए Hmm. था कि ये सेकेंड टाइम हुआ था। जब वायरल वेब भी मैंने जब छोड़ा था, वो एक तरह से मैं बंद करना ही मानूंगा, क्योंकि आई हैड टू एक्चुअली लिव विच आई स्टार्टेड। तो वो टाइम थोड़ा टफ होता है। लेकिन मेरे केस में आई थिंक थोड़ा पेशेंस था इस बार। मतलब मुझे इतना था कि मैं दोबारा आऊँगा, कम बैक करूँगा, बहुत ही पेशेंटली बिल्ड करूँगा। मुझे कभी कभी क्या होता है कि आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ स्टेप्स पीछे लेने होते हैं। तो मैंने वही माना कि मुझे कुछ स्टेप्स पीछे जाने हैं, कुछ कॉस्ट कटिंग करनी है, अपनी टीम को स्ट्रक्चर को थोड़ा लीन करना है। मतलब कुछ लोग थे जिनको मैंने बोला ठीक है, फुल टाइम नहीं हो सकता, अब आप वर्चुअली काम करो, विच मीन्स आई हैड टू पे देम लेस। मैं उनको नॉर्मल सैलरी नहीं देता, हम लोग कुछ कम देते हैं। लेकिन दैट वाज आई मीन केस ऑफ प्योरली सर्वाइवल। वो हमें सर्वाइव करना था उस टाइम पीरियड में, वो हम लोगों ने किया। तो दिस इज हाउ आई आई मैनेज ऑल दिस थिंग्स। वो टफ था सबके लिए, लेकिन और आज वो है, आज वो लोग आज भी मेरे साथ हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा मतलब साथ दिया है उस टाइम में। तो दे ईच एंड एवरी वन इज विथ मी टिल डेट। That's really nice, and that's a true leadership lesson in itself. So, Mitesh, where do you see organic and wellness industry heading in the next few years? कहाँ पे देख रहे हो आप इसको जाता हुआ? And how can students tap into this, growing sector? अभी ये बहुत grow कर रहा है, especially after the COVID, बहुत boom पे है ये sector. Be it देखिए, अभी ये India ग्रो or, कर रहा है, और अभी आप बहुत सारे रिपोर्ट्स देखोगे जहाँ पे आपने hmm, फूड फार्मर का भी देखा है, इंस्टाग्राम में काफी yes, रील्स वायरल हुए हैं। तो मोस्ट ऑफ द कमर्शियल ब्रांड्स इंडिया में, चाहे वो हनी हो, चाहे वो पैक्ड फूड हो, मेजर इश्यूज आता है अडल्ट्रेशन का, सेकंड शुगर कंटेंट का। शुगर और अभी कंटेंट इज लोग बहुत समथिंग। ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हाँ, हैं, अभी तो इन लोग पीछे दैट पड़ रहे हैं, लेवल्स को ऑल्सो, पढ़ते हैं। तो जब हमारे से होम ग्रोन या छोटे ब्रांड शुरू होते हैं, वो इसी कंसेप्ट पे होते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना बैंडविड्थ होता नहीं है कि हम प्रोसेसिंग करें और उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करें, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत बड़ा सेटअप चाहिए। तो शुरू ही इस कंसेप्ट में होता है कि वी हैव टू गिव सर्टेन थिंग्स वेरी प्योर विदाउट एनी मिक्सिंग। तो अभी जो ऑर्गेनिक फूड है, सिर्फ ऑर्गेनिक फूड नहीं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, चाहे वो स्किन केयर हो, चाहे वो फूड फूड में हो, अभी आने वाले टाइम में आप देखोगे और भी ज़्यादा ग्रो करेगा। उसका रीज़न क्या है कि अब पेइंग कैपेसिटी बढ़ रहा है लोगों में भी धीरे धीरे। सेकेंड, डिमांड। एंड थर्ड, जिस तरह से पॉल्यूशन और एयर क्वालिटी पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हमारा सॉइल कंटेंट और सॉइल की क्वालिटी अच्छी हो। तो हमारे केस में क्या होता है कि हम लोग, हमारे जहाँ से भी कोलाब्रेशन है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में हम लोग मेघालय से करते हैं, उत्तराखंड में भी कुछ हिली एरिया से, वो एक बफर जोन होता है जहाँ पे इंडस्ट्रीज भी नहीं होती आसपास की, और वो लैंड्स एक्चुअली में ऑर्गेनिक सर्टिफाइड लैंड्स होते हैं। तो विच मीन्स सॉइल कंटेंट इज वेरी गुड, यू गेट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। एक नेचुरल होना, ऑर्गेनिक होने में फर्क होता है। नेचुरल आप बोल दो जो भी चीज़ें पेट से आ रही है, आपने आपने उसमें मिक्सिंग नहीं की। सेकेंड इज, वो ऐसे सॉइल पे है जो सॉइल ही हेल्थी है, तो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट कि सॉइल कैसा है वो। राइट, और वेरी ट्रू। सस्टेनेबिलिटी है, अगर अगर आप ऑर्गेनिक में हो, तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि शायद लोगों को, अगर वो कर पाए,
खुद का एक किचन गार्डन होना चाहिए जहाँ से अगर वो खुद ही ग्रो करके खा पाए, आई थिंक उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता वेजिटेबल्स क्या खा रहे हो। राइट, राइट, राइट। एंड इतनी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ कॉन्शियसनेस एंड ये जो लाइफस्टाइल हो गई है, सो आई बिलीव उसकी वजह से सेक्टर का बूम आना इज तो वेरी मच डेफिनेट। राइट, क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जो आपको फूड की वजह से है, एयर क्वालिटी की वजह से है। राइट, तो आप कुछ भी कर लोगे, लेकिन अगर आपका फूड इंटेक ही अच्छा नहीं है तो आई डोंट थिंक बाकी चीजें फिर सॉल्व हो सकती हैं। राइट। तो मित्रेश, आप अभी अपना बिजनेस पूरा कंप्लीटली इंडियन ऑडियंस को ही केटर कर रहे हो, कैसा रिस्पॉन्स दिख रहा है इन द प्रीमियम अभी कैटेगरी ऑल्सो? हम लोगों ने इंडिया पे शुरू किया था, अभी रिसेंटली दुबई से शिपमेंट स्टार्ट किया है, और अभी हम लोग यूएस में जाने वाले हैं, लेकिन ये Oh, कम्प्लीटली that's ऑनलाइन nice. होगा। भैया, Mhm. So लेकिन हमें responses बहुत अच्छा, आपको कैसे मिले, especially from India? हमें शुरू से अच्छे मिले हैं। आई मीन जिस तरह से हमारी ग्रोथ हुई है अर्ली डेज में, जब मार्केटिंग स्पेंड भी नहीं था, तो इनिशियल डेज में हम लोगों ने साउथ इंडिया से बहुत अच्छा देखा था अपने रिस्पॉन्स, लेकिन अभी हमें पैन इंडिया से, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, वेस्ट हो, अभी हर जगह से ही ऑर्डर्स आते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ऑर्गेनिक ऑर्डर्स हमारे ज़्यादा होते हैं, विच मीन्स हम लोग पेड मार्केटिंग कैंपेन्स पे थोड़ा कम खर्च करते हैं, हमें खुद से वर्ड ऑफ माउथ से ऑर्डर्स ज़्यादा आते हैं। Okay, that's really nice. That's nice. So, Mitresh, आपको आज भी बच्चे देख रहे हैं and the session will be uploaded बाद में भी. So in the YouTube also they will get to see, listen this whole show. So if I would say कि one piece of advice to all those college students who are interested in this field of entrepreneurship and running their own businesses, so क्या कहना चाहोगे आप उन बच्चों के लिए? द फर्स्ट थिंग इज वही कि आप पहला स्टेप लो, आई मीन डोंट बी स्केयर्ड ऑफ फेलियर, कि फेल हो गया तो क्या होगा। पहला स्टेप लेना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप आपने वो लिया नहीं है तो आप आगे बढ़ोगे ही नहीं, और आप कर भी नहीं पाओगे। सेकेंड इज बीइंग Very कंसिस्टेंट इन योर जर्नी, आई मीन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कुछ शुरू किया तो उसमें कंटिन्यूस एफर्ट देना चाहिए, वो एनर्जी आप उसमें दो, आप भले आप आपकी वर्किंग आवर 4 घंटे हो, 5 घंटे हो, लेकिन वो एनर्जी और बीइंग कंसिस्टेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। थर्ड, फेलियर के का फियर नहीं होना चाहिए। अगर आपको आपके मन में फेलियर का फियर है, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, तो आई थिंक वो थोड़ा फिर प्रॉब्लमेटिक है, वो होना ही नहीं चाहिए। Very practical tips, I must say, guys. This is golden tips. This is exactly what they need to, hear out, and they have to start wherever they are and whatever they are doing. Very practical tips. So, thank you, Mitresh. Before we wrap थैंक up, यू। what is the key, takeaway that everyone should be remembering, be it running entrepreneur or जो अभी future में अपनी, business start करना चाहते हैं? आई थिंक वॉट एवर दे आर डूइंग, दे डू विथ फुल फुल हार्ट, आई मीन पूरे प्योर सोल के साथ, एनर्जी के साथ करो। आपके स्टडीज हो, बिजनेस हो, एनी हॉबीज यू यू डू, आई मीन उसमें वो एनर्जी पूरी होनी चाहिए। वो कभी वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने वो एफर्ट नहीं दिया, बाद में वो गिल्ट नहीं हो कि मैंने एफर्ट नहीं दिया। तो आई मीन गिविंग प्योर एफर्ट टू इज वेरी मच इंपॉर्टेंट वॉट एवर यू डू। Well, such a closing, a strong closing thought. The session was packed with insights. So, in the end, what an incredible conversation it has And been. also I will say that when we were students, I mean उस वक्त इतना सोचा भी नहीं था। अभी with time I think lot of things have changed with new government schemes coming in, स्टार्टअप इंडिया का आना, गवर्नमेंट के Yeah. जो प्रमोशंस हो रहे हैं स्टार्टअप्स को लेके, जो आप लोग कर रहे हो एज अ पार्टनर्स प्रमोट कर रहे हो, Even Shark Tank India. या शार्क टैंक इंडिया, अभी जैसे आप लोग भी कर रहे हो वाइट वाइट बोर्ड फाउंडेशन में, राइट। तो आई थिंक ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि दे आर एक्चुअली गेटिंग इन कनेक्ट विद सच फाउंडर्स और Yes. इंडस्ट्री लीडर्स, और इनको इनका भी फायदा मिलता है, मिलना भी चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि इस एज में अगर ये इतना सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, और कर लेंगे तो और भी अच्छी बात है। राइट, राइट, वेरी ट्रू। अर्ली तो एक्सेस ही इतना डिफिकल्ट होता था किसी फाउंडर को रीच करना एंड उनसे इंसाइट्स लेना, एंड हाँ, अभी क्योंकि तो जब इतनी हम लोगों ने सारी। शुरू किया, ये चीजें थी नहीं ना, मतलब आई हैव ऑलवेज मिस्ड समवन बैकिंग मी फ्रॉम बिहाइंड। वो था ही राइट, नहीं, वो कनेक्शंस नहीं थे। अभी कनेक्शंस बने हैं, वो क्यों बने हैं? क्योंकि मैं एक बार शार्क टैंक में आ गया तो बन गए, नहीं तो शायद बनते भी नहीं। तो थोड़े इजी हो गए चीज़ें, बहुत जो पहले डिफिकल्ट थे, लेकिन आई थिंक अभी बहुत इजी है। आई मीन लास्ट 2-3 साल से काफ़ी चीज़ें इजी हुई हैं, भी नेटवर्किंग इवेंट्स और कुछ भी। तो आई थिंक इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, और अभी इनके पास बहुत टाइम है। तो अगर ये लोग कॉलेज में करते हैं, कॉलेज से निकल के करते हैं, तो आई थिंक तब तक तो बहुत अच्छा बना सकते हैं कुछ भी।
राइट। तो एग्जैक्टली स्टेइंग अवेयर, अभी इनको इतनी अवेयरनेस मिल रही है हर जगह से, इतनी ज्यादा नॉलेज मिल रही है, इंटरनेट इज देयर, शार्क टैंक इज देयर, आप लोगों के जैसे फाउंडर्स आर देयर हु एंड आर मिथ होता है, पता है कि हमें बहुत बड़ा सेटअप चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, इंडस्ट्रीज, कुछ नहीं है। आप राइट। घर से, आप छोटे से घर से शुरू कर सकते हो, अपने कमरे से कर सकते हो। आई मीन ऑनलाइन, एग्जैक्टली। ऑनलाइन ऐसा मीडियम है जो आप अपने घर से 1 करोड़ का बिजनेस को लेकर, मैंने किया है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने शुरू शुरू ही घर से किया था, और बहुत ही छोटे स्केल से किया था। और सिर्फ मैंने नहीं, मैंने अपने साथ में और भी 5-6 फाउंडर्स देखे हैं जो सिमिलर जर्नी में थे। तो काफी लोगों ने किया है और अभी भी कर रहे हैं। तो वो मिथ है कि आपको यार बहुत बड़ा अभी सेटअप चाहिए। सक्सेसफुली तो या प्लेस और ये सब तो अभी बाउंडेशन रह ही नहीं गया है, नहीं है, डेफिनेटली। क्योंकि इंटरनेट के आने से, लॉजिस्टिक इंप्रूवमेंट होने से काफी फर्क पड़ा है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। So yeah, Mitresh, your journey from an idea to a Shark Tank funded startup is nothing short of inspiring. You have shown us that passion, persistence, and a strong purpose can truly create an impact. From navigating challenges to scaling a business, and from the importance of real world skills to seizing industry opportunities, you have given so much us to think about. To all the students who are here today, guys, this is your moment. Whether you dream of launching your own venture or making a mark in the corporate world, take this inspiration and turn it into action. Okay, the road ahead is full of possibilities, and as Mitesh said, the best time to start is now. So, a huge thank you to Mr. Mitresh Sharma for sharing his invaluable insights, and to all of you for being an amazing audience. Guys, keep learning, keep growing, and remember, you are the next generation of change makers. Thank you so much, everyone, for joining us today. We'll see you again in the next session. Thank you so much, Mitresh. Thank you. थैंक यू। या बाय। Thank you. Bye.